साउथ का हीरो बना सबको Speech inaugurated by Sri Pema Khandu, Honorable Chief Minister Arunachal Pradesh, in presence of Sri दाराक सीबू और सीख नदियों के संगम से उभरा ये स्वर्ग सी छोटी जगह 11 गांवों के 4 जेडपीसी सेगमेंट का मिश्रण है। करीब 4000 की आबादी वाले क्षेत्र के 11 गांव हैं। दाराक, लिगतबोजे, घुग, पारे, सालापतों, देगपतों, लारमुकपतों, पोगो, पयोम, बरुराक्सा और सिजिर। आप इस क्षेत्र में बेंजी लेने के आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही पेनरो यानी लाइम बेड केव का भी लुत्फ उठा सकते हैं। आपको ये भी बता दें, यहाँ पर योर्दी राब सुबसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जहाँ स्नो लियोपर्ड और लियोपर्ड की आबादी अभी भी अच्छी खासी पाई जा सकती है। यहाँ बार्किंग डियर की प्रजाति भी देखी जा सकती है। इसका श्रेय यहाँ की प्रकृति के साथ साथ यहाँ के लोगों को भी जाता है। यहाँ शिकार पूरी तरह से मना है। यहाँ की साफ नदियों को पर्यटकों के लिए एक आकर्षण बनाया जा सकता है। हालांकि हाल में कायाकिंग और एंगलिंग फेस्टिवल जैसी एक्टिविटीज शुरू हो चुकी है। आज आप हसीन हस्तियों के पावन कदम के पड़ने से हमारी इस खूबसूरत जगह की खूबसूरती और बढ़ गई है। आप सभी का यहाँ पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। इस दिशा में मैं दाराक के जिला परिषद सदस्य श्री मिम्बा राक्साब को स्वागत भाषण के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूँ। मिम्बा राक्साब। Very good morning, one and all. Most respected Honorable Chief Minister, Shri Pema Khandu ji, Sir ji, guest of honor, Kardon Honorable MLA 28 Assembly Constituency, Honorable MLA Asikento Jini ji, 30 Alo East, Honorable MLA Shri Gokar Basar ji, Honorable MLA 29 Bashar, Honorable ZPC Alo, Honorable ZPC Leparada, Honorable respected our DC Alo, SP Alo, our former Honorable Minister Dojum Ronja Sarji, OSD to Chief Minister, CSLO to Chief Minister, Asik Kirde Paduji, ER Kirki Ori Chief Engineer Housing, Police Housing, all the Honorable JPM, all the GPC of 27 Lirumba Assembly Constituency, all the participants, all the HOD, all the respective officers, those who are coming from Itanagar, and all the GB of our constituency, and all the Gambraj, or all the officers and officers of our district. And lastly, Honorable Madam Honorable MLA 27 Lirumba Assembly Constituency, Dr. Gojum Karloji. I, on behalf of the people of Darak Circle, in particular, and the people of entire 27 Lirumba Assembly Constituency in general, I'd like to extend my very warm welcome to our chief guest, Honorable Chief Minister Shri Pema Khandu Sir Ji, and guest of honor, Honorable MLA Kadoniyor Sir Ji, 28 Likavali,
Sarji, and all the others members present here on 5th Sports Carnival at Darak. At the very outset, I would like to highlight the Sports Carnival in brief. This is the 5th Sports Carnival event, which is a very meaningful and innovative event organized in the 27th Assembly Lirumaba constituency in circle-wise under the guidance of our Honorable MLA Shri Nyamar Karbak Sirji. Since he became as an elected representative of our constituency, the first annual sports carnival was held at Dara in the year 1918, and then held in the other circle of the constituency annually. This sports event is an innovative ideas and being sponsored by Honorable MLA Karbak Sirji, young and popular and very dynamic leaders. This annual sports carnival is platform to show cause the talent of the youths. This sports carnival is not only about the competition, but it is also about having fun, being physical active, learning and basic of the sports, and building coordination and teamwork, and so to give the youths an opportunity to display their talent, self-confidence, patience, zeal, and sportsmanship, and motivative the students to do excel academically and can help build their social skill. This 5th Sports Carnival is very, very special, remarkable and historic events for all of us that our Honorable Chief Minister Pema Khandu sir, one of the best Chief Minister of our country, and Honorable MLA Shri Kardon Nuyor sir, attending this event as chief guest and guest of honor. I take this opportunity. I would like to convey the message of the 27 Lirumaba Assembly constituency to our loving Chief Minister and guest of honor, that we are very happy with the performance of Khandu-led government of Arunachal Pradesh. Apart from this, apart from this carnival event, by taking this rarest opportunity to have our loving Chief Minister with us today, I, being a ZPM as well as active members of the BJP party, would like to apprise the latest political status or report in respect of our 27 Lirumaba Assembly constituency to our loving Chief Minister, Pema Khandu ji. That in the last assembly election, BJP candidate of Lirumaba Assembly seat won the election by more than 900 votes, and after the election, after election, more than 400 voters have been joining in the party. As on that, under the leadership of Shri Nyamar Karbak sir, really we feel lucky enough to have Shri Nyamar Karbak sir as our leader, who is a very smart, young and dynamic and innovative, whom people started loving selflessly by then of his hard good work. And we also acknowledge that our MLA sir has good relationship and rampant with the Honorable Chief Minister like family members and other lawmakers of the state, which is very beneficial for our people and area. I, on behalf of the people of this 27 Lirumaba Assembly constituency, would like to heartily pray Almighty God for maintaining more good rapport and everlasting relationship between our Honorable MLA and between our Honorable Chief Minister sir and our Honorable MLA sir in days to come. I am very much thankful to our Chief Minister sir for attending this 5th Sports Carnival at Darak, and I also personally
I knew our this honorable guest of honor, Sri Kadon Nigyor sir, as my relative. Since long before, once again, I would like to extend my very, very warm welcome to our chief guest and guest of honor and all others present present here on 5th Sports Carnival at Darak. Thank you. भी गुजरते हैं। देवी और सज्जनों, मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि हमारे अरुणाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट प्रदान करने के लिए माजोनी बोची राक्षाप और उनकी टीम को मंच पर आमंत्रित करता हूं। चाहिए इनके साथ हैं मिस देंगाम पतोम, ये हमारे कालो आभूषण हैं। हम आशा करते हैं इससे हमारा प्यार और बड़ों का आशीर्वाद सदा आपके साथ रहेगा और ये आपको हर अनहोनी से बचाए रखेगा। हमारी दुआ, हमारी मोहब्बत, हमारा प्यार इसके साथ आपको चाहता है। विजय सदैव आपके हों। जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन होता रहे। ये तीर धनुष आपकी रक्षा करेगी। ये बोलू आपको हमेशा शराबों पर बिठाए रखेगा। सर, हम आपको बताना चाहेंगे इस वक्त आप बिल्कुल कालो लग रहे हैं सर, और वो भी दाराक के निवासी। सर, उस रस्सी से मिथुन पकड़े जाते हैं और आपको हम एक मिथुन भेंट कर रहे हैं। सब की जीपीसी है। इनके साथ हैं देतर भयोम, बाजुम काई और परकेन बोचे। ये ऐसी एतोजिनी विधायक आलो, आज आप हमारे यहाँ बीच उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। न्यागोदिनी दिर्ची जी, ZPC लपरादा। ऊर्जा और पूर्ति को अपने लोगों की भलाई में तब्दील करने वाले हमारे युवा नेता, हमारे प्रिय माननीय विधायक श्री न्यामार कारबाग जी उर्फ दादा, जिनकी दूरदर्शी से आज का ये उत्सव हकीकत बन सका है, आज हमारे बीच विराजमान है। दादा, आपके लोग आपसे दो शब्द सुनने को बेताब हैं। आपसे इंतजार है आप हमारी मनोकामना पूरी करें। मैं मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए बड़े भाई पेमा कांडू जी, गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आए हुए लिकावली के स्ट्रॉन्ग लीडर श्री काडो निग्योर जी, आलो के MLA मेरे दोस्त केंदो जेनी जी, बासर के MLA गोकार बासर जी, DC वेस्ट सियांग पेंगा ततो जी, SP वेस्ट सियांग अभिमन्यु जी, लपरादा के ZPC न्याबी दिर्ची जी, वेस्ट सियांग के ZPC बाबम रोमिन जी, मंच पर उपस्थित मेरा फॉर्मर गर्लफ्रेंड और प्रेजेंट वाइफ गोजुम कालो जी, उपस्थित देवी और सज्जनों, ओ दो लोग आकुमना पोनु पड़ती गद मोक अजन गद, ओ दो लोग आकुमना ऑफिसर गद लोदू बंगो एरिया होगो
5th स्पोर्ट्स कार्निवल लो नारोंगो वेलकम दूना। मैं ऑनरेबल सीएम सर को बताना चाहूंगा, दाराक एक ऐसा ब्लेसिंग दिया हुआ जगह है। बेंजिलिने के ताकत से माता प्रसाद जी गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश बेंजिलिने चल के गए थे। प्रेजेंट गवर्नर भी बेंजिलिने के बारे सुनने के बाद बेंजिलिने पहुंचने का, पैदल पहुंचने का काम किया था। इस पावन धरती पर दारक वासियों ने बताया है, गेगोंग अपांग जी मुख्यमंत्री के तौर पे यहां पे आए थे। वो दारक आने के बाद बहुत ही ऊर्जावान होकर वापस जाकर अरुणाचल को 15-20 साल चलाया है। मैं आज दारक वासियों से यही उम्मीद करूंगा कि आप सब हम लोगों के प्रिय मुख्यमंत्री पेमा खांडू को फिर से वही आशीर्वाद आप दीजिए, वापस जाकर पेमा खांडू और ऊर्जावान हो और अरुणाचल को और विकास के रास्ते में आगे ले जाए, बहुत सालों तक ले जाए। सर, मैं आपको बहुत ही खुशी के साथ बताना चाहूंगा, दारक एडमिनिस्ट्रेटिव सीओ सर्कल है हमारा। ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल में आपको सिगरेट का बिक्री भी यहाँ मनाही है, गुटखा तंबाकू का बिक्री भी मनाही है, एक ड्रग फ्री जोन है और यहाँ में तंबाकू का सेवन को वर्जित करके रखा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सर, और स्पेशली मैं स्पोर्ट्स कार्निवल 5th नंबर तक आ गया है। मैं जो दोस्त ZPMs जो बाहर से आए हैं सभी को भी मैं बताना चाहूँगा, 27 लिरमोवा एक बहुत ही जटिल और बहुत ही दिक्कत वाला एक कॉन्स्टिट्यूंसी है ज्योग्राफिकली एरिया के माध्यम से। मैं जहाँ ताई में बासर को बाउंड्री रखता हूँ, लूसी एरिया में जहाँ मैं दापोरोजे दुम्पोरोजे को बाउंड्री रखता हूँ, क्याक के बाद मैं सियोमी को बाउंड्री रखता हूँ, सियांग डिस्ट्रिक्ट को बाउंड्री रखता हूँ, और ये मेरे पास 4 सर्कल है और चारों सर्कल को एक दूसरे को मिलने का कभी मौका नहीं मिलता है। किसी का शादी ब्याह होने से एक दूसरे में आदान प्रदान होता है, आना जाना रहता है। अदरवाइज कार्यहीनम गुनु कामु माधु अक लगाब विद द सपोर्ट ऑफ ऑल माय वर्कर्स गुनु हिम ने कॉन्सेप्ट इतो कॉन्सेप्ट एक दोला हर सर्कल से बच्चे लोग एक जगह में आए, वर्कर लोग एक जगह में आए, एक हफ्ता साथ गुजारे, दोस्ती बढ़ाए, एक दूसरे को जान पहचान बढ़ाए। ही कहो कि मेन उद्देश्य है। अब ये लोग आकुम ना तुम को रिक्वेस्ट दू कार्निवल आपला ये जगह गेला निमला में नितका ngो album हुई है, अजय नितका ngो album हुई है। अच्छा सोच रखकर आगे बढ़िए, असी भी साथ है, इसी के लिए ये है, सब एक दूसरे को मिलना है। मैं स्पेशली दारक का ZPM जो जिसको हम लोग सूर्या भाई बोलते हैं, सूर्या भाई को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है। बादल पतम साहब को तो मैं क्या बोलूं, एक बहुत ही अच्छा गाना आपने लिखा है, एक इमोशनल गाना है, दारक लिरमोवा यमचा को किस प्रकार से एक साथ रखना है, आपने गाना लिखा है। आज बाद आजकल नो विस्की में वाइन तीदो हमदू नो वाइन को तम चिंता योकाई ये लोग गानम ताने में ngonom असिना को जिता को नके मार्कर बगोने सिंह को थैंक चिता ना मामा जी बहुत अच्छा काम किया ngो ऊपर अच्छा ngो का ये को नशिन थैंक चिता ना ओके एंटायर लपसा टीम में थैंक चिता ना जिस प्रकार से आप लोगों ने इसको आयोजन किया है। ओके स्पेशली कामकु एरिया स्पोर्ट्स एसोसिएशन कासा कदम से थैंक चिता नुनु हो हाल ये दुम नम लगा बा ओके ngok kamba bango स्पोर्ट्स एसोसिएशन से थैंक चिता ना नुनु हो हाल ये दुम नम लगा बा। ही गेम हमने सर्कुलर वननेस यूनिटी का है, हमने एक कॉन्स्टिट्यूंसी होके वननेस ला यूनिटी का है, हमने डेवलपमेंट आगे नहीं बढ़ेगा। कोई भी डेवलपमेंट कहीं भी हो रहा हो वो हम सब का डेवलपमेंट है। कंबा में कोई अच्छा काम चल रहा हो वो लिरमोवा का भी है, लिरमोवा में कुछ अच्छा काम चल रहा हो वो दारक का भी है। इसी प्रकार से हम सबको आगे बढ़ना है। मैं आज तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि उन्होंने नरू ऑनरेबल CM का लोग आगमन तय पर लगे
गेस्ट ऑफ ऑनर कार्दन योर लोग तैयार लगे वो स्पेशली सैनी में ऑनरेबल सीएम साहब को सबके सामने 27 लिरमोवा के जनता का सामने दारक का पब्लिक का सामने लोदुबांग एरिया हो वो आज पंगा तातों ने आलू में डीसी डालने के लिए मैं आज सबके सामने आपको थैंक्स देना चाहूंगा। थैंक्स इसलिए कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट सियांग जब से बना है कभी भी 27 से कोई भी आदमी उधर डीसी बन के नहीं गया है। पंगा तातो इज द फर्स्ट डीसी फ्रॉम आवर कॉन्स्टिट्यूंसी, सो वी आर प्राउड ऑफ हिम। और साथ ही में आपका बगल में बैठा है सर, ये आदमी मेरे लिए भी ज्यादा काम का नहीं है, ये आदमी वही काम करता है जो सही है। और ये आदमी कोई पैसे का लालची में नहीं है, ये आदमी कैरेक्टर का एक पक्का आदमी है, इसका भी मैं आपको एश्योरेंस देता हूं सर। आने वाले समय में भी इसको और आगे बढ़ाइए सर, ये काम का आदमी है। मैं साथ ही साथ मुनुक होकर ही तकर कर देना कितने हेंतो करगा अभी योमचा मुर्गे एडीसी बियदु सीनियर एडीसी बियदु एडमिन ग्रेड पाला को सार मुंगों केंद्र बंधु आपका हिंदो करगा साहब को भी आप बहुत तारीफ किया है, उसको भी मैं कहीं अच्छा जगह लगा रहा हूँ। ऑलरेडी अप्रूव तो बामदू कौन सा डिस्ट्रिक्ट में हमको तो मालूम नहीं है, कोई अच्छा जगह में जाने वाला है। ओगला सिंह एडवांस नरोम पिलक जीत काम दो ओगला अब एज ए सीएम साहब बड़ा भाई है, आज तक कभी तो हम कुछ उसको दे पाया नहीं, कभी आगे भी कोई देने का कोई मौका मिलेगा भी नहीं। मैं इसी समय में वो ऑफिसर आएंगे अमीन ब वो हॉबदर को तोंगल गजीव को हम लोगों हिलो अनाउंस दून गई 2 जिंदा मिथुन आज दारक जेडपीएम साहब 1 मिथुन दिया है, मैं अपना तरफ से 2 मिथुन आपको जिंदा दूंगा ऑन दिस नोट बड़े भाई। और उसको पहुंचाने का काम भी सूर्य भाई आपको जिम्मेवारी दे रहा हूं, आप ट्रक में लाद के तवांग ले जाने का काम आपका है। और मैं अब रोजा इधर बेटा सो सॉरी अब लुजुम रोजा ने मेंपेन तो अब लुजुम रोजा गुनुंग बुगा गुनुंग लुने गुनुग गुन मजबूत दो ngom मजबूत दो ngom menggurla igurla ibn अब लुजुम एरिया मेगना अब लुजुम ngok हाइदल गदम मोतेला लजना मोल लजना अब लुजुम न सिंगुन बुगा ले बदुन का हमने में ओके सर। इसी समय में सर और 2 बात मैं और जोड़ना चाहूँगा। मेरा इधर में सर ये दारक सर्कल से 2 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, एक सीनियर सोहदो पदम साहब और एक हमारा रुजुम रक्षक साहब हु इज़ वेरी पॉपुलर इन आपका बोमदिला, आपका ये बेल्ट में बहुत पॉपुलर है, कभी कभी तो डाउट भी लगता है ज़्यादा पॉपुलर है उस एरिया में। तो मैं आज सोहदो पदम का सर पूरा दारक का पब्लिकता को मेंदू ना कर, ये छुपा नहीं है। आज सोहदो पदम का सर एक केस हुआ है, हम सबको मालूम है, एक केस हुआ है सर। ये आदमी ईमानदार आदमी है, गलत जगह में ट्रैप हुआ है सर। मैं आपको सबके सामने बताना चाहूंगा, एक अच्छा ऑफिसर है सर, बहुत गलत जगह में फंसा है सर। इसको भी सर आप भरोसा कीजिए, आगे लेके जाइए सर, ये अच्छा आदमी है सर। असरुजुम का तो मेंच कामा मुझे नहीं को 200 ही दू एमएलए सिन फ्यूचर लो मुयम सिन अल्ले एक तो कांगो सार ने मेंपा जिनंगो आज सो दे जंगुनुगा सार मु लिगला एजुकेशन ब मुनगा जॉइंट सेक्रेटरी भी दू आगे लो मुयम आगे बराई तो कांगो की जंग मेंपा नंगो ई पिलिक तो के दोलगा दा ई अल्लाह में। और सर एज एमएलए मैं अपने एमएलए लेट से 3 काम एक इनोवेशन के रूप में करता हूँ, इनोवेटिव आइडिया के रूप में करता हूँ। अभी आपने देखा है इस साल हमने 100 से ज़्यादा टॉयलेट्स हर गांव में बना के दिया है, हर लोगों को बना के दिया है, जिसमें 2,50,000 का धनराशि हम लोग देता है, जिसमें पब्लिक को एक कॉन्सेप्ट के साथ सकने से वेस्टर्न टॉयलेट को एडॉप्ट करो बोल के मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं। क्योंकि जो हम लोगों का गांव में बुरी लोग है, किसी किसी का घुटना में प्रॉब्लम होने के बाद मुराम ने ऊको दो मग दो ए न का दो हम इमा दो ही कॉन्सेप्ट लिख दो मुनम वेस्टर्न टॉयलेट मत का मुनको 2,50,000 में जितना हिनी गांजो मुन 100 मत बा टोटल सर हम लोगों ने 400 प्लस टॉयलेट अभी पूरा 27 लिरमो के अंदर कवर किया है। आने वाले समय में हर घर में जरूर पहुंचाऊंगा। और सर एमएलए टैलेंट अवार्ड हर साल में देता हूं, जिसमें जो भी गवर्नमेंट स्कूल से 70% एबव
लाते हैं उसको हम लोग इनकरेज करते हैं, और जो प्राइवेट स्कूल्स में 80+ लाते हैं उसको इनकरेज करते हैं, जो म्यूजिक के क्षेत्र में आगे जाते हैं उसको इनकरेज करते हैं, जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आगे जाते हैं उसको इनकरेज करते हैं। और MLA मोस्ट क्लीन विलेज हर साल हम लोग अवार्ड देने का काम करते हैं, जिसमें जो गांव सबसे स्वच्छ होता है, सबसे सफा रखता है, उस गांव का हम लोग प्राइज देते हैं। सिजिल रक्षक को भी दिया है, जिसमें हम लोगों ने टीवी दिया था हर लोगों को, और उसके बाद आपके ताप्योर को भी हम लोगों ने योमचा में दिया था, हर घर में टीवी दिया था। और सर आफ्टर इलेक्शन बीजेपी को सबसे बड़े मेजोरिटी के साथ बोरू रक्षक ने हमें जिताया था, मुझे भी और MP किरण रिजिजू को भी, बड़े भाई को भी। तो उस गांव में भी हम सब ने वर्कर ने कलेक्ट कर सर 15 लाख रुपया देने का काम किया है। काम्बू बस्ती में हाईएस्ट लीडिंग मार्जिन हम लोगों को दिया था, हर गांव वाले को एक एक वॉशिंग मशीन दिया है काम्बू बस्ती को। और आपके योमचा में हाईएस्ट लीडिंग बस्ती था हम लोगों का अकर योंगम में भी पूरा बीजेपी का मेरा वर्कर हम सब कलेक्ट कर हर घर में कुकर फ्रीज देने का हम लोगों ने काम किया है। और आपके लिरमोवा में भी रीसे दर्दी गांव को हम लोगों ने हर गांव में हर घर में वॉशिंग मशीन और उन लोगों के इच्छा अनुसार फ्रीज खरीद के दिया है एज ए टोकन ऑफ लव आफ्टर इलेक्शन। बिकॉज बिफोर इलेक्शन देने से ये ब्रेव होता है, आफ्टर इलेक्शन देने का ये खुशी का बात होता है। ये आपके सामने मैं बताना चाहता हूँ। और सर डेवलपमेंट के मामले में सर आपने हमेशा ही आपके सामने मैं कहा हूँ, मैं आज तक बड़ा बिल्डिंग अपने एरिया के लिए कभी भी मांगा नहीं हूँ, मगर मैं बहुत ही खुशी होती है पूरा पब्लिक मेंजूला गुनु विद द ब्लेसिंग ऑफ ऑनरेबल CM पेमा खांडू जी गुनु इजा कंबा सर्कुल ही सेरेतालियम कनेक्शन इतकुबा सिरुतालियम कनेक्शन इतकुबा सेसिलिकरम कनेक्शन इतकुबा काम्बुदोलू हमने बौद्ध साइड ब्रिज मोल दोदू काम्बुदोलू भी कनेक्टेड हो जाएगा। दाराक हमने हिलोंगनु इनोग्रेशन इतबा दाराक टू लारमुक पतोम और लारमुक पतोमा ब्रिज हम आलोगोलू इनोग्रेशन इतबा दाराक टू बोरू रक्षा बदाम इजा मंगोइल दोदू दाराक टू बोरू रक्षा ब्रिज हमने हिलो इनोग्रेशन इतबा बेलो होक दाराक पुमा दाबा बेलो इनका बोजे कुगु परे इनका आम बदा आम सिन गुनु हिनी आनी होगोंगो मरोब दो इत्तोन का हमने नुन महिलो मेंजुना का लिरमोवा हमने रीसे बेलेजम कनेक्शन इस्टोक बा ताई अल का लिरमोवा हम सिन ब्लैक टॉपिंग इला केनलो मोला गोकर बासर साहब गुनन्या इनोग्रेशन इत्तेबा। इसमें भी सर बताना चाहूँगा आपका मेरा थाई और लिरमोवा ये गोकर बासर साहब का एरिया में आधा रोड पड़ता है, मेरा एरिया में आधा रोड पड़ता है। पहले ये रोड को हम लोग बना नहीं पा रहा था, इसलिए नहीं बना पा रहा था कि आइडिया डिफरेंसेस होने की वजह से एक यहाँ से शुरू करेगा एक वहाँ से शुरू करेगा करके हम दोनों के बीच में तसल था। गोकर आने के बाद हम दोनों ने ये निर्णय लिया कि जो भी हो रोड बनना चाहिए। इस बार हम दोनों ने गोकर अपना साइड का इनोग्रेशन किया, हम अपना साइड का इनोग्रेशन किया। गोकर बासर का लगा बसिन अरे पिलित जीत का होक लगा योमचा तू बेलो रोड हम हिलोंगुन इनोग्रेशन इतबा ऑनरेबल CM साहब योमचा अलकर रागिदो के एकता कनेक्टिंग one constituency to another constituency ragido ke oke yomcham connecting idba leparada district amle inam connecting idba am singun itkuba bada kam solil dodwai alsin alok lobsin gokarne ko thank you jiduna akir yongam हमने दोनों कनेक्शन इतबा पीदी में तू तगो कमदिन आज इनोग्रेशन हो गया। पीदी में तू गदमसी डिपार्टमेंट यहाँ में है, काम स्लो चल रहा है पर उसको भी हम लोग जैसे भी टारगेट को अचीव करेंगे। वाक टू योमचा स्टेट हाईवे ऑनरेबल CM साहब ने ये आलो बोलो कहान गद जिला गद दुनिया दू आलो वेस्ट हेम्मा मुनु बोलो सरबे तरबे नरू अतम ए तुझे पैल सैलम बले लंगु इनमें जंगोक पहले हम टेंडर इकाकू बोलकम जिनो मालन काम इरोबेल पर बसिन नुन नरू मेंसा हमने में ngो और अभी मेरे एरिया में सर और 3 जगह है अभी भी कनेक्टिविटी नहीं है। पाल
और जिलन बस्ती में एक आपका रोड ब्रिज का जरूरी है, उसमें लिरमोवा सर्कल में, और फिर लिरमोवा सर्कल में मोया यासी, मोया केला, रोन्या दोलुलुग है, उसमें भी अभी प्रॉपर रोड नहीं है, उसका भी काम अभी चल रहा है सर। सिजिर रक्षा परसों में जाके आया हूँ, दोलों प्रमिस तो रेबा आम सिन बदा मत बंगो इरोप तत्तर का मेंते भाई हमने सर एक डायन लिरमोवा टू योमचा एसी सर्कल कनेक्टिंग एडीसी सर्कल। सर अभी भी मुझे लिरमोवा जाने के लिए यहाँ से बासार जाना पड़ता है, बासार से तिरबिन जाके ताई से मैं लिरमोवा घुसता हूँ सर। ये दोनों को कनेक्ट करने का जो काम है सर, आपने इसको आगे बढ़ाया है, आपने डिपार्टमेंट को डायरेक्शन तो दिया है सर। आज सबका सामने में आप तो मेमोरेंडम नहीं देना है ऐसे हम लोगों को आपने डायरेक्शन दिया था, लेकिन आपको पूरा पब्लिक के सामने मेरा बताना फर्ज हो गया। इसे भी आप सर जैसे भी आने वाला 2023 से पहले शुरू करने के लिए आप जैसे भी आशीर्वाद दीजिए, मैं सब पब्लिक के सामने रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सर लिबू बने तू दाराक, अभी जिस रास्ते से हम लोग आए हैं सर, वो रास्ता को भी सर जैसे भी स्टेट कॉम्प्रिहेंसिव रोड प्लान के अंदर में सर आप लेके आ देने से ये भी हम लोगों के लिए डबल लाइन कनेक्टिविटी का एक रास्ता हो जाएगा सर। इसको भी आप जैसे भी टेकअप कर देने ठीक है। मैं सब पूरे सामने पब्लिक के सामने रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहले हमारा जेडपीएम सूर्य भाई ने गलत बोला, आफ्टर इलेक्शन 400 लोग ज्वाइन किया बोल के बोला। इन नंबर आफ्टर इलेक्शन 4000 लोग हमारा बीजेपी के साथ जुड़ा है। मैं ये नहीं समझता हूँ कि मेरे साथ जुड़ा है, सब बीजेपी के साथ जुड़ा है। और अभी सर हम लोगों की एक प्रथा है सर, जो भी ज्वाइन करता है एक मिथुन काट के देता है सर। तो इस हिसाब से ज्वाइनिंग मिथुन ये आने वाला 26 को हम लोग एक और मिथुन खाने जा रहा है। कापत अली साहब हम लोगों को ज्वाइन कर रहा है, वो मिथुन खाने से मेरा 43 मिथुन हो जाएगा सर। सर आपका लीडरशिप में अरुणाचल बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन पे ट्रांसफॉर्मेशन, हर चीज में क्रांति आ गया है। इस बात का कोई दोहराव नहीं कि पेमा खांडू अच्छा काम कर रहा है नहीं कर रहा है, अच्छा बहुत अच्छा काम कर रहा है। आज अरुणाचल में कोई चीज का लीकेज का चांसेस ही नहीं है। मतलब यूथ का मेंदू का देयर इज नो शॉर्टकट फॉर एनीथिंग नाउ। नौकरी के लिए आप शॉर्टकट का रास्ता है नहीं, शॉर्टकट होने से वो जेल में है। तो इसीलिए पेमा खांडू का गवर्नमेंट बहुत ही सक्षम गवर्नमेंट है, बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट है। और आई फील वेरी प्राउड कि उसका गवर्नमेंट में मैं एक पार्ट हूँ और उसका गवर्नमेंट में उसके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। मैं पब्लिक को इस प्रकार से नुन्योब आया मोरम लदुदु लेबतो का और हिंजी कार्निवल हमने काकेन जाब इगला जब मैं तलगो हम मुलत रहे। थैंक यू, जय हिंद। और आज के इस समारोह का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको पता भी होगा, लेकिन हम आपको अपनी जुबानी बताना चाहते हैं कि हमारे चुनाव क्षेत्र के लोग आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। वैसे तो आपसे मोहब्बत करने के अनेकों कारण हैं, पर इन कारणों में से प्रमुख एक कारण है हमारे न्यामर दादा और आपकी अटूट दोस्ती। हम जानते हैं आप और न्यामर दादा में राजनीति से ज्यादा परिवार का रिश्ता है, खून से बढ़कर भाई का रिश्ता है। आपकी जोड़ी जय वीरू की है, आपकी जोड़ी धर्मवीर की है। हम तहे दिल से दुआ करते हैं आपकी दोस्ती को किसी की नजर न लगे और ये मिसाल बनकर हमेशा कायम रहे। और इसी दोस्ती के खातिर आप यहाँ आए। हमारे लोग आपसे दो शब्द सुनने को बेताब हैं। आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत है, माननीय मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू। स्पोर्ट्स कार्निवल जो लिरुमोवा कॉन्स्टिट्यूंसी में आयोजन किया जा रहा है, हमारे साथ गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में ऑनरेबल एमएलए लिखावाली श्री करदो निगर जी और इस पूरे इवेंट के चीफ पैट्रन या चीफ ऑर्गेनाइजर यहाँ के स्थानीय विधायक हमारे दोस्त श्री न्यामर करबक जी, मंच पर मौजूद ऑनरेबल एमएलएस श्री किंतो जिनी जी, श्री कोकर बसर जी,
हमारे बीच उपस्थित इस कॉन्स्टिट्यूंसी के और इस डिस्ट्रिक्ट के सीनियर लीडर फॉर्मर मिनिस्टर श्री लिजुम रोनिया जी, जेडपीसी वेस्ट सियांग बाबुम रोबिन जी, जेडपीसी लेपरादा श्रीमती न्यावी जिनीता जी, यहाँ उपस्थित सभी हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफिसर्स और लोधू बंगो स्पोर्ट्स एसोसिएशन के सभी मेंबर्स, और आप जितने भी जो 4 सर्कल और जितने भी जो हमारा ग्राम पंचायत से जो रिप्रेजेंटेटिव स्पोर्ट्स पर्सन यहाँ पे आए हैं, मीडिया के दोस्तों, भाइयों और बहनों, मैं इस स्पोर्ट्स कार्निवल जो आज ये 5th एडिशन जो चल रहा है, जो शुरुआत यहाँ के स्थानीय विधायक श्री न्यामर करबक जी ने 2016 से जो शुरुआत किया, बीच में 2 साल कोविड के कारण से ये कंटिन्यू हो नहीं पाया, मगर हमें याद है 2nd एडिशन पर मैं कंबा में इसी स्पोर्ट्स कार्निवल के उद्घाटन में मैं वहाँ आया था। तो आज दोबारा फिर 5th एडिशन यहाँ दारक में आने का हमें मौका मिला है। तो सबसे पहले मैं यहाँ के स्थानीय विधायक श्री न्यामर करबक जी और पूरी कमेटी और यहाँ के लोधू बंगो स्पोर्ट्स एसोसिएशन, आप सभी मेंबर्स और यहाँ के जिला परिषद मेंबर और पंचायत लीडर्स, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। मेरा ये 2 दिन का टूर कल से ही शुरुआत हुआ है अपने ही डिस्ट्रिक्ट वेस्ट सियांग में। कल मैं किंतो जिनी साहब के साथ में उनके कॉन्स्टिट्यूंसी पर काफ़ी सारा इवेंट को हम लोग ने विटनेस वहाँ पे किया, और आज मैं यहाँ पे आया हूँ। यहाँ से जाने के बाद फिर हम कंबा एरिया में कुछ प्रोग्राम वहाँ पे हम अटेंड करेंगे। कोविड के चलते मेरा थोड़ा सा टूर रुक गया था, मगर कोविड अभी ख़त्म हो चुका है, तो फिर दोबारा मैं लोगों से मिलने के लिए और आप लोगों का कॉन्स्टिट्यूंसी या डिस्ट्रिक्ट किस प्रकार से डेवलपमेंट हो रहा है और क्या चैलेंजेस आप लोग फेस कर रहा है, उसको आंखों देखा हाल देखने के लिए, सुनने के लिए मैं खुद यहाँ पे आया हूँ। मगर जिस प्रकार से अपने इस लिरुमबा कॉन्स्टिट्यूंसी न्यामर करबक जी ने जो संभाल रहे हैं, वो काफ़ी अच्छा से मैनेज यहाँ पे कर रहा है। और जिस प्रकार से आप लोगों का कॉन्स्टिट्यूंसी में एक यूनिटी का जो लहर जो उन्होंने जोड़ रहा है, ये बहुत ही एक एग्जाम्पलरी है। मैं ये मानता हूँ कि अरुणाचल प्रदेश पर दूसरे जो कॉन्स्टिट्यूंसीज भी इसी मॉडल को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ये जो स्पोर्ट्स कार्निवल जो 2016 से ही जो ऑर्गेनाइज करके जो लेके आया, ये बहुत ही यूनिक है पूरा अरुणाचल प्रदेश में। टोटल कॉन्स्टिट्यूंसी अरुणाचल प्रदेश में 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, मगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में इस प्रकार का स्पोर्ट्स कार्निवल और जितने भी जो हमारा ग्राम पंचायत है उस लेवल से टीम आके पार्टिसिपेट करना, ये अरुणाचल में कहीं नहीं होता है। ये केवल होता है अपना इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, लिरुमबा योमचा कॉन्स्टिट्यूंसी में ही होता है। तो मैं इसका क्रेडिट पूरा यहाँ के एमएलए और यहाँ के जितने भी जो सीनियर लीडर्स हैं, और आज इस इवेंट में चारों सर्कल से यहाँ पे एमिनेंट जो सीनियर लीडर्स और हमारे गाँव बुरास भी यहाँ पे मौजूद है। तो आपका लीडर ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव ये शुरुआत किया है। हमें ये मानना है कि आने वाला दिनों में इसी मॉडल को बाकी कॉन्स्टिट्यूंसीज में भी कंसर्न ऑनरेबल एमएलएस लोग इसको रेप्लिकेट करेंगे। स्पोर्ट्स जो होता है, कल भी काफ़ी सारा स्पोर्ट्स का एक्टिविटीज़ वहाँ पे किंतोजिनी साहब के इवेंट कॉन्स्टिट्यूंसी पे वहाँ पे विटनेस हम लोग ने किया है। और देखिए, स्पोर्ट्स जो होता है हमेशा हम सभी को स्पोर्ट्स को साथ में जुड़े रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अपना हेल्थ है तो सब कुछ है। हेल्थ इज़ वेल्थ जो कहते हैं। अगर हेल्थ नहीं है तो आपके पास जितने भी चाहे धनराशि, प्रॉपर्टी, जितने भी हज़ारों करोड़ों लाखों जितने भी जो प्रॉपर्टी या पैसा है, वो किसी भी काम का नहीं होता है। इसलिए हेल्थ को मेंटेन करना है तो स्पोर्ट्स का साथ हम लोगों को जुड़ना ही पड़ेगा। तो ये जो इनिशिएटिव है, खास करके हमारा यंगर जनरेशन्स, जितने भी जो ग्राम पंचायत में हमारा जो यूथ है, उन लोगों को स्पोर्ट्स के साथ भी जुड़ना, उनका हेल्थ भी अच्छा से मेंटेन करके रखना, और साथ ही साथ हमारा इस लिरुमबा कॉन्स्टिट्यूंसी में आपस में भाईचारा
आपस में जो फ्रेंडशिप बॉन्डेज उसको आगे बढ़ाने में इस कार्निवल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आने वाला दिनों में आपके इस कॉन्स्टिट्यूंसी में और भी लोग यूनिटी होते हुए और भी लोग अपना भाईचारा और दोस्ती को आगे बढ़ाएंगे। किसी का घर में कुछ प्रॉब्लम होता है तो बाकी अपना जो दोस्त लोग हैं वो लोग भी जाके मदद करेंगे, खुशी में भी शामिल होगा और दुखी में भी शामिल होगा। सो इस प्रकार से एक पॉजिटिव एम्बियंस बनाने में ये स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा एक योगदान होता है। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आप सबको पता है कि पिछले 6 साल में अरुणाचल प्रदेश में भी काफ़ी तरक्की हम लोग ने किया है। एक समय होता था अरुणाचल प्रदेश में कि स्पोर्ट्स में सबसे नीचे कंट्री का सबसे लोएस्ट परफॉर्मिंग जो होता था वो अरुणाचल प्रदेश हुआ करता था। मगर आज नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में पर अभी स्पोर्ट्स का चेहरा अभी बदल चुका है। बहुत सारा इनिशिएटिव पीएम मोदी साहब ने शुरुआत किया है और उसी का साथ देते हुए राज्य सरकार ने भी काफ़ी कोशिश किया है कि अपना राज्य में स्पोर्ट्स को प्रायोरिटी देते हुए स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भी हम लोग ने काफ़ी फेसलिफ्ट किया है और जहां नहीं है वहां अभी नया भी कंस्ट्रक्शंस अभी हो रहा है। इस बार जो नेशनल जो गेम्स भी हुआ था, जो नेशनल गेम्स हुआ था वहां में भी अरुणाचल में नॉर्थ ईस्ट में अगर कंपेयर किया जाए तो अरुणाचल वाज नंबर 2 नॉर्थ ईस्ट में नेशनल गेम्स पर भी। इस बार रिसेंटली जो अभी हम लोगों का नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक्स भी ऑर्गेनाइज किया था शिलोंग में, उसमें अगर नॉर्थ ईस्ट का जो मेडल टैली देखिएगा तो अरुणाचल जो है नंबर 3 में है। फर्स्ट मणिपुर, सेकंड असम, नंबर 3 में अरुणाचल प्रदेश। तो धीरे धीरे हम लोग का यहाँ पे स्पोर्ट्स का प्रोग्रेस जो है वो बढ़ रहा है। अभी कल में वहाँ आलो में भी एक बैडमिंटन का इंडोर स्टेडियम भी हमने उद्घाटन करके हमने आया है और यहाँ इस कॉन्स्टिट्यूंसी में पता चला है कि न्यामर जी के इनिशिएटिव्स में बहुत सारा अभी इंडोर स्टेडियम्स कुछ बन के कम्प्लीट हो गया और कुछ अभी अंडर प्रोसेस में है। और जो फुटसल का हो गया, हर एक जगह में यहाँ पे फुटसल भी बना रहा है, इस प्रकार से हमें बताया गया। तो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में इन पर्टिकुलरली न्यामर करबक जी काफ़ी रुचि लेके अपना इस डिस्ट्रिक्ट में और आपका कॉन्स्टिट्यूंसी में यहाँ पे काम कर रहा है। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अभी हम लोग कुल मिला के 15 स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्टेड बाय नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड करीबन 23 करोड़ का लागत से हम लोग 15 लोकेशंस पर अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। आप सभी को पता होगा कि 4 इंटरनेशनल स्टेडियम उसका 4 हम लोग ने ऑलरेडी बना चुका है, पासीघाट, जीरो, दपुरुजू और यूपिया। और 3 प्रोजेक्ट अभी ऑनगोइंग में है, एक आलो में है, एक तेजू में है और एक चिंपू में है। आलो वाला प्रोजेक्ट में मैं कल जाके विजिट किया, वहाँ का कॉन्ट्रैक्टर और वहाँ के एग्जीक्यूटिव एजेंसी दोनों को कहा कि जल्द से जल्द इस आलो वाला प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना चाहिए। सरकार की ओर से जो भी फंड है वो फंड्स का कमी बिल्कुल होने नहीं देंगे। और साथ ही साथ खेलो इंडिया के अंतर्गत पर 20 मल्टीपर्पज इंडोर हॉल्स हम लोग अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश में बना रहा है, जिसका अंतर्गत 3 प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। दिरांग, ट्रिबिन और बसार का प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट हो चुका है। बाकी जो ऑनगोइंग 17 जगह में है वो अभी ऑनगोइंग है, बहुत जल्दी वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और साथ ही साथ डोनर मिनिस्ट्री के अंतर्गत भी 3 बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्पोर्ट्स के लिए हम लोग ने सैंक्शन करके रखा हुआ है। सो इस प्रकार से बहुत सारा और भी प्रोजेक्ट्स है। मैं पूरा लिस्ट आप लोगों को पढ़ के आप लोगों को बोर नहीं कराऊंगा। कहने का मतलब अभी राज्य सरकार काफ़ी फोकस वे में हम लोग स्पोर्ट्स क्षेत्र को आगे लिफ्ट कर रहा है। मैंने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को कहा कि हम लोगों का भी मिशन होना चाहिए, मिशन ओलंपिक्स। अभी मिशन ओलंपिक्स का टारगेट हम लोग 2028 से करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और 2028 से शुरुआत करने के लिए तैयारी अभी से हम लोग को शुरू करना है। इसलिए डिपार्टमेंट को मैंने कहा कि खास करके अरुणाचल प्रदेश में जितने भी जो अगर मेडल टेलिस का हम लोग कंपेयर किया जाए तो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में हम लोगों का बहुत क्षमता है, हम लोगों का बहुत कैपेसिटी है इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में। जैसे मार्शल आर्ट्स में हो गया कराटे, जूडो, वुशु, इसके बाद बॉक्सिंग हो गया, वेट लिफ्टिंग हो गया,
इस प्रकार से जो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में हम लोगों का बहुत कैपेबिलिटीज़ है हमारे यूथ में, तो डिपार्टमेंट और ओलंपिक एसोसिएशन को हमने कहा कि 5 फील्ड 5 डिसिप्लिन आप लोग आइडेंटिफाई कीजिए। उसी डिसिप्लिन को हम लोग अभी मिशन ओलंपिक के तौर पे ट्रेनिंग या जो भी करना है सरकार अपना खुद करके 2028 ओलंपिक्स के लिए अभी से हम लोग ने तैयारी शुरू करने का रोड मैप अभी बना रहा है। तो आज यहाँ पर दारक में आके जो यहाँ के विधायक श्री न्यामर करबक जी ने जो काम किया है आप लोगों के सामने में उद्घाटन करने का हमें मौका मिला है। कुल मिला के 29 प्रोजेक्ट्स का आज उद्घाटन हुआ है और 5 एग्जीक्यूटिंग एजेंसी PWD, RWD, PHED, अरुणाचल पुलिस हाउसिंग और डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, तो 5 एजेंसी मिलकर अलग अलग अपने डिपार्टमेंट के जो विषय पर 29 प्रोजेक्ट्स इस कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरा डेडिकेट किया है। तो देखिए अभी उस जमाने में MLA मिनिस्टर्स को फंड मिलना, केंद्र सरकार से हो राज्य सरकार से हो सैंक्शन मिलना बहुत मुश्किल हुआ करता था, मगर अभी नरेंद्र मोदी जी का सरकार और यहाँ पे अरुणाचल में अपना सरकार, टीम अरुणाचल का सरकार, जो PM साहब हमेशा कहते हैं डबल इंजन का सरकार, डबल इंजन का सरकार में अभी डिफरेंस ये है, विटनेस आप लोग रह चुका है। पिछले पुराना गवर्नमेंट, पुराना PM, पुराना CM, उनका लीडरशिप भी आप लोग ने देखा और इस प्रकार से अभी नया जो डेवलपमेंट हो रहा है नरेंद्र मोदी जी का लीडरशिप पर, उसका अंतर्गत में भी देखा कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लोगों का विकास के लिए कितने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडिंग सपोर्ट अरुणाचल प्रदेश को कर रहा है। हम लोगों का सबसे बड़ा चैलेंज हमेशा मैं बोलता हूँ कि कनेक्टिविटी ही हुआ करता था। अभी आज देखिए हमारा कितना अच्छा हाईवे अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश में बन रहा है। अभी आपका ये जो पुराना जो हाईवे है पुटिन टू पंगिन, इसमें भी काम बहुत तेजी से यहाँ पे चल रहा है। तो ये पैकेज 8 और 9, खास करके पैकेज 9 जब कंप्लीट हो जाएगा तो इस रीजन का कनेक्टिविटी बहुत अच्छा हो जाएगा। और साथ ही साथ कनेक्टिविटी को और भी गति देने के लिए रिसेंटली आप सभी को शायद अखबार के माध्यम से या न्यूज़ सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला होगा, गुवाहाटी में मैं नितिन गडकरी साहब के साथ में मीटिंग बैठकर अरुणाचल प्रदेश के लिए 2500 किलोमीटर एडिशनल रोड सैंक्शन हम लोग ने करवाया है। और कल शाम को जब मैं आलो में प्रोग्राम अटेंड कर रहा था तो दिल्ली से मैसेज आया कि 5:30 बजे उस गडकरी साहब फिर दोबारा उस प्रोजेक्ट को रिव्यू लेके आगे किस प्रकार से बनना है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो कल शाम को ही मैं आलो से सर्किट हाउस से, जो रिसेंटली हमने कल ही उद्घाटन किया नया सर्किट हाउस आप लोगों के लिए, तो वहाँ में बैठ के 5:30 बजे को दोबारा फिर नितिन गडकरी के साथ में और 3 एग्जीक्यूटिव एजेंसी, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, NHIDCL और अपना स्टेट PWD हाईवे, उन सभी लोगों का साथ में बैठ के गडकरी साहब हम दोनों पूरा इस जो फ्रंटियर हाईवे का ऊपर में पूरा चर्चा करके अभी किस प्रकार से आगे बढ़ना है ये भी डायरेक्शंस हम लोग ने दे दिया है। सो इस प्रकार का अप्रोच नरेंद्र मोदी जी और उनका पूरा टीम का वजह से आज देखिए अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट कितना आगे बढ़ रहा है। हम लोग पहले एक जमाना था नॉर्थ ईस्ट के बारे में लोगों को उतना आइडिया नहीं था, पता नहीं था लोगों को। वो लोग सोचते थे कि नॉर्थ ईस्ट तो एक ही रीजन है, एक ही स्टेट होगा, वहाँ पर ट्राइब्स भी एक ही ट्राइब का होगा, सब लोग एक ही समान लोग होगा। मगर नॉर्थ ईस्ट का जो डाइवर्सिटी, जो डायनेमिक्स है, वो यहाँ में नॉर्थ ईस्ट में पहुँचने का बाद, इसके बाद सब राज्य में घूमने का बाद तब जाके पता चलेगा। अपना अरुणाचल प्रदेश का भी जो डाइवर्सिटी है, आप देखिए कि अरुणाचल में 26 मुख्य जनजाति है और सब ट्राइब तो 100 से भी अधिक है हम लोग। अभी मैं आज आप लोगों का गालो एरिया में हूँ, मैं मोनपा ट्राइब से हूँ, आप लोग गालो से है। आप लोग गालो का देखिए, आप लोगों का ड्रेस पूरा अलग, यहाँ का मफलर अलग, आप लोगों का जो खाना है, जो डाइट है, खाना पूरा अलग। इसके बाद घर का जो डिज़ाइन है ट्रेडिशनल घर का, वो पूरा डिज़ाइन अलग। इसी प्रकार से हर एक ट्राइब का अपना अपना एक यूनिक पहचान होता है। हमारा भाषा देखिए, आप लोगों का गालो भाषा मैं नहीं समझता है, मेरा जो मोनपा है आप लोग नहीं समझेगा। सो विद इन द नॉर्थ ईस्ट इतना डाइवर्सिटी है और विद इन अरुणाचल सबसे डाइवर्सिटी है। विद इन नॉर्थ ईस्ट में भी अरुणाचल में बहुत डाइवर्सिटी है। तो इस डाइवर्सिटी को पहचाना तो नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने पहचाना।
आप सबको याद होगा जो आज PMGSY इतना सक्सेसफुल है, और ये रोड भी हमें कहा गया है कि PMGSY का अंदर ही है, PMGSY का अंदर ही है ये रोड। तो PMGSY को भी लॉन्च करने वाला वो कोई नहीं था बल्कि अपना स्वर्गीय प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने PMGSY को लॉन्च किया था। उसका कारण से देखो हमारा ट्राइबल स्टेट्स लोगों को कितना फायदा हुआ है। डोनर मिनिस्ट्री जो आज जो हमारा प्रोजेक्ट्स वगैरह जो सैंक्शन करके आता है, डोनर मिनिस्ट्री का भी गठन अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने ही किया था, बीजेपी सरकार ने। तो 2014 जब से नरेंद्र मोदी साहब बना तब से लेके अभी तक 8 वर्ष में 8 इयर्स में आप देखो कितना ट्रांसफॉर्म हो गया है हमारा नॉर्थ ईस्ट और अरुणाचल प्रदेश। उस पहले जमाने में एक वक्त था कि केंद्र का मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर बोलते थे कि हम नॉर्थ ईस्ट ट्रेवल किया, मगर आते थे केवल गुवाहाटी तक। गुवाहाटी तक आके अखबारों में खबर छाप जाता था कि फलाना मिनिस्टर नॉर्थ ईस्ट में चला गया। उस वक्त में तो प्रधानमंत्री तो आना बहुत ही दूर का बात था, 10 साल में एक बार आता था प्रधानमंत्री। मगर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखिए, नॉर्थ ईस्ट पर मोर देन 60 टाइम्स वो अभी टूर कर चुका है। अरुणाचल प्रदेश में भी 6 बार ऑलरेडी वो आ चुका है। तो इस प्रकार का जो हम लोगों का जो माननीय प्रधानमंत्री जी अरुणाचल प्रदेश को जो प्यार करते हैं, पहले इस प्रकार से कभी भी हम लोगों को प्यार नहीं मिला। केंद्र सरकार, भारत सरकार बहुत बिजी होता है, ये देश बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा इश्यूज होते हैं वहाँ दिल्ली में। अभी अरुणाचल के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए छोटा छोटा इश्यूज को लेके पहले का सरकार ने कभी फोकस नहीं किया। मगर ये सरकार ऐसा है कि चाहे इशू बड़ा हो या छोटा हो, इशू है पब्लिक का वेलफेयर के लिए है, तो बहुत सीरियसली केंद्र सरकार अभी ध्यान दे रहे हैं। कनेक्टिविटी में दूसरा जो है, आप सबको पता है कि अभी रिसेंटली माननीय प्रधानमंत्री जी जो उद्घाटन करके किया हमारा एयरपोर्ट का उद्घाटन करके किया, दोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर। अभी उससे पहले 7-8 जगह पर हम लोग ने एडवांस लैंडिंग ग्राउंड, वो भी नरेंद्र मोदी सरकार ने फंडिंग करके हम लोग ने कंप्लीट कर चुका है, जिसमें से आपका आलो भी एक है, मगर आलो जो लैंडिंग में फिजिबल नहीं है, इसलिए उसको एयरपोर्ट हेलीकॉप्टर्स के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। बाकी आप देखिए विजयनगर देखिए, मेचुका देखिए, टूटिंग में देखिए, पासीघाट देखिए, इसके बाद तेजू में देखिए, जीरो में देखिए, 6 जगह तो हम लोग ने फिक्स विंग एयरक्राफ्ट वो हम लोग ने ऑलरेडी उतार चुका है वहाँ पे। और 3 एयरपोर्ट तेजू, पासीघाट और जीरो उड़ान स्कीम का अंतर्गत में ऑलरेडी जोड़ चुका है। अभी ईटानगर का फ्लाइट 28 ये मंथ का 28 तारीख को इंडिगो से शुरुआत होगा, 29 को फ्लाई बिग एयरलाइंस, 2 एयरलाइंस अभी इसी महीना से अपना ईटानगर से शुरुआत हो जाएगा। अभी जहाँ जहाँ हम लोग ने छोटा जो एयरस्ट्रिप बनाकर रखा, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का माध्यम से एक छोटा प्लेन डोर्नियर फ्लाइट हम लोगों को दिया हुआ है, तो उसका माध्यम से ईटानगर से बाकी जितने भी हमारा जो एयरस्ट्रिप है, जो हमने अभी 6 एयरस्ट्रिप जो काउंट किया, उससे हम लोग जोड़ पाएंगे। तो एयर कनेक्टिविटी कितना आगे बढ़ गया। और ईटानगर एयरपोर्ट तो रिकॉर्ड टाइम में कंप्लीट हुआ है। 2019 में प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन ले किया, 3 साल बाद उसी फ्लाइट में वो उसी एयरपोर्ट में वो दिल्ली से डायरेक्ट लैंड किया। ये रिकॉर्ड टाइम है, रिकॉर्ड टाइम। इससे ये प्रूफ होता है कि उस बीच में 2 साल भी कोविड का महामारी भी आया था, उसका बावजूद भी हम लोग ने बना के कंप्लीट किया। तो इससे ये चीज प्रूफ होता है कि अगर आप करना चाहेगा तो आप कुछ भी कर सकता है। आप देखिए 3 साल में एयरपोर्ट बना दिया। और दुख का बात यह है कि आलो का जो स्टेडियम है 2018 में सैंक्शन करके रखा, अभी 5 साल हो रहा है, अभी तक भी कंप्लीट नहीं है। तो इसीलिए यहाँ का देखिए, यहाँ का जो डिपार्टमेंट कॉन्ट्रैक्टर, उसको एक मन बनाना होगा। केवल सिर्फ मैं इसका आलो का ही बात नहीं कर रहा, बाकी जितने भी यहाँ पे काफी ऑफिसर्स लोग होंगे आप लोग, तो आप लोग भी देखिए एक डेडिकेशन का साथ में काम करेंगे। एयरपोर्ट 3 साल में बन जाता है, एक बिल्डिंग को 5 साल लगने से ये पब्लिक के लिए ये ठीक नहीं है। सरकार गवर्नमेंट में फंड्स का कमी नहीं है, अभी हम लोग फंड अभी सरप्लस है हम लोग अभी,
इसीलिए पुराना जितने भी जो सैंक्शन है, लाइबिलिटीज है राज्य सरकार का, सब हम लोग ने क्लियर कर दिया है। तो इसलिए आप लोग एक टीम स्पिरिट पर अपने जो सीनियर्स होता है उनको अप्रोच करना है। सीनियर जो है कंसर्न सेक्रेटरी, मिनिस्टर जो डिपार्टमेंट का है उनको अप्रोच करके अभी काम करना है हम लोगों को। पुराना स्टाइल में आराम से चलेगा, उस सब अभी नहीं होता है। अभी दुनिया जो है एकदम तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसी प्रकार से अरुणाचल को भी हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में किस रफ्तार से काम करना है, मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल बताया। दोनीपोलो एयरपोर्ट को 3 साल का अंतर्गत में हम लोग ने बना दिया। जब एयरपोर्ट 3 साल में बन जाता है तो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में क्या प्रॉब्लम है। तो इसलिए आप लोगों को अभी दोबारा फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि पूरा अपने आप को री एनर्जाइज करते हुए अपना राज्य को हम लोग दोबारा फिर सर्विस डेडिकेट करना, ये बहुत जरूरी है। कनेक्टिविटी पर दूसरा जो मेजर जो मेन कनेक्टिविटी है वो ये है अपना डिजिटल कनेक्टिविटी। डिजिटल कनेक्टिविटी में अभी पीएम साहब के माध्यम से 4G टावर्स मोर देन थाउजेंड्स हम लोग ने सैंक्शन कराया है, और हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ब्लॉक में हम लोग सवान के थ्रू से हम लोग केबल बिछाने का भी काम हम लोग ने शुरुआत कर दिया है। और आपका इस तारक में यहाँ पे मोबाइल कनेक्टिविटी का काफ़ी इशू है, तो इसका भी ऑलरेडी एयरटेल कंपनी को दे चुका है, और बहुत जल्दी यहाँ में एयरटेल फैसिलिटी भी आप लोगों का यहाँ पे आ जाएंगे। आजकल का जो युग में सोशल मीडिया और इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कल मैं वहाँ पे बोरू गांव में भी मैंने कहा कि इन सब का हम लोग पॉजिटिव यूज़ करना चाहिए। इंटरनेट में अभी आप गूगल में कुछ भी आप मारिए, रिसर्च कर सकते हैं, जो यूज़ है आप लोग और भी नॉलेज वहाँ से प्राप्त कर सकता है। मगर इंटरनेट को आप लोग गलत इस्तेमाल कर लेगा तो फिर आजकल का जो युवा जो है वो बिगड़ने में फिर टाइम भी नहीं लगेगा। इसलिए इंटरनेट का माध्यम से हम लोग एक पॉजिटिव डायरेक्शंस पर हम लोगों को ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ मेरा आप सभी जो यहाँ पे सीनियर पब्लिक लीडर्स चारों सर्कल से जो आए हैं, हमारा गांगुरा जनरल लोग है, और सभी जो इस डिस्ट्रिक्ट के भी सीनियर ऑफिसर्स लोग भी हैं, तो मैंने कल वहाँ पे जो गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन बुरूम का जो हो रहा था, मैंने कहा कि हम लोगों का बच्चों लोगों का देखभाल, पेरेंटिंग हम लोगों को अच्छा से करना बहुत ही ज़रूरी है। अभी आजकल हम लोग क्या हो रहा है कि ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक में हम लोग खो के जा रहा है। किसी का पास टाइम नहीं है क्योंकि लाइफ बहुत बिजी है, सबको काम काज करके बैठ जाना है, लेकिन हम लोग से टाइम निकाल कर पेरेंटिंग जो है वो देखना बहुत ज़रूरी है। पेरेंटिंग ठीक से नहीं होने से हमारा फ्यूचर जनरेशन जो है वो बिगड़ जाएगा। आज स्कूल में जो बच्चे हैं, कॉलेजेस में जो बच्चे हैं, वही हमारा समाज का फ्यूचर है, इस राज्य का फ्यूचर है और इस देश का फ्यूचर है। इसलिए उन लोगों को नर्चर करना हम सबका काम होता है। हम लोग बगीचा में एक फूल लगाते हैं या एक पेड़ जब हम लोग लगाते हैं तो उसमें सुबह शाम पानी देना, और उसको जब छोटा होते हैं तो पेड़ को हम लोग प्रोटेक्शन, बेम्बू से पूरा प्रोटेक्शन हम लोग देता है। उसी प्रकार से भी बच्चे को भी इस प्रकार से हम लोगों को नर्चर करके उसको बड़ा हम लोगों को करने में सहयोग हम लोगों को चाहिए, नहीं तो वो पेड़ जो है फिर बिगड़ जाएगा और पेड़ जो है वो फिर सूख जाएगा। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि हमारा भविष्य, अरुणाचल का भविष्य जो है वो डार्क में चले जाए। और यहाँ इस सर्कल में आके हमें बहुत अच्छा लगा दारक में कि अभी पता चला है कि यहाँ पे आप लोगों का यहाँ पे टबैको फ्री जोन है और ड्रग्स फ्री जोन है। ये बहुत ही अच्छा आप सभी लोग ने एफर्ट लिया है। कल मैं वहाँ आलो में भी जिक्र किया कि जो ड्रग्स कल्चर को हम लोगों को पूरा सोसाइटी से एलिमिनेट करना है, और जिसका माध्यम से हम आलो में जो अभी जो मदर्स विजन डी एडिक्शन और रिहेबिलिटेशन सेंटर जो चला रहा है, बहुत अच्छा वहाँ पे मदर्स लोग मैनेज करके चला रहा है। वहाँ पे सपोर्ट पूरा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल अभी दे रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर्स के भी इस साल हम लोग और भी वहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। मगर हम सबको जो सप्लाई चेन उसको हम लोग को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। आज जो बच्चा जो ड्रग्स में जो एडिक्ट हो गया, उसको हम लोग एक पेशेंट का रूप में हम लोगों को देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये ड्रग एडिक्ट है, उसको सोसाइटी में एकदम लुक डाउन करके, वैसे भी बेचारा वो ड्रग
लेके उसको कुछ समझ नहीं आता है और सोसाइटी भी इस तरह से बिहेव करेगा तो ये हम लोगों का गलत बात हो जाएगा। ड्रग एडिक्ट हो गया मतलब वो भी एक पेशेंट हो गया। जैसे हम लोग अभी खांसी जुकाम या कुछ भी जो चाहे टीबी कैंसर या जो भी बीमार होता है तो हम लोग पेशेंट को हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। उसी प्रकार से अगर कोई युवा या जो भी ड्रग एडिक्ट हो जाता है तो उसको सीधा रिहेबिलिटेशन सेंटर, डी एडिक्शन सेंटर, वहाँ में एक्सपर्ट्स लोगों को दिखाना ये बहुत ज़रूरी है। उसको एक पेशेंट का रूप में हम लोगों को ट्रीट करना होगा। तो इसलिए ये जो सोशल जो टैबू से निकाल के ड्रग्स को सोसाइटी से निकाल के फेंकने में एकजुट होके हम लोगों को काम करना होगा। सरकार पूरा अपने और से हम लोग ने पॉलिसी बनाया है, डीसी का पास में पूरा अभी कमिटी है, मगर सरकार अकेला इसमें हम लोग कुछ कर नहीं पाएगा। हमारा सीबीओस, हमारा यहाँ के वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, सभी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, आप सबका योगदान इसमें होना पड़ेगा, तब जाके हमारा समाज जो है यहाँ से ड्रग फ्री हो जाएगा। तो सप्लाई चेन को रोकने के लिए माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह, उनका अंतर्गत में हम लोग रिसेंटली गुवाहाटी में नारकोटिक्स का भी मीटिंग हुआ। तो अभी ड्रग्स मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल वहाँ आलो में किसी पेडलर के थ्रू से ड्रग्स पकड़ लिया तो पुलिस जो है केवल सिर्फ उस पेडलर को अरेस्ट करने से नहीं होगा, उस पेडलर ने कहाँ से जाके कौन सा पॉइंट से जाके उस ड्रग्स को डिलीवरी लिया, वहाँ जाइए, वहाँ भी इन्वेस्टिगेट, फिर फर्दर जाके टिल सोर्स कहाँ से शुरुआत होके आया है। अभी केवल सिर्फ पेडलर को पकड़ के ये काम खत्म नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे एसपी साहब और बाकी पुलिस ऑफिसर्स भी है, आप लोग ध्यान से सुन ले कि ड्रग पेडलर्स को पकड़ लेने से ये ड्रग्स कल्चर खत्म नहीं होगा। वी शुड गो टिल द रूट्स, वहाँ तक जाके हम लोगों को सबको पकड़ना होगा, पूरा चेन को हम लोग अच्छा से ब्रेक करना होगा। इस ड्रग्स के जो कल्चर के जो फाइट है उसमें पूरा नॉर्थ ईस्ट एस टीम हम लोग फाइट कर रहे हैं। अरुणाचल के साथ हमारा नेबर है असम, अरुणाचल के साथ हमारा नेबर है नागालैंड। तो पूरा नागालैंड पुलिस के साथ में, असम पुलिस के साथ में वेल कोऑर्डिनेट करके हम लोग इस ड्रग्स कल्चर को एलिमिनेट करेंगे। तो मेरा आप सबसे ये निवेदन होगा कि अपने समाज से ड्रग्स को हम लोग निकालना बहुत ज़रूरी है। और बाकी जो सरकार का जो इनिशिएटिव है, आप सबको पता है पिछले 5-6 सालों से सरकार आपके द्वार जो कैंप जो चला है उससे बहुत लोगों को बेनिफिट मिला है, गांव वालों को। अरुणाचल प्रदेश का जो गांव वाले हैं, हमारा जो गांव में बसे हैं, बहुत इनोसेंट है। राज्य सरकार का क्या स्कीम होता है उनको पता नहीं है, केंद्र सरकार का क्या क्या योजना है उनको पता नहीं होता है। इसलिए पब्लिक और सरकार के बीच में जो बहुत बड़ा जो गैप जो बन कर रखा था, हमने उस गैप को मिटाने का कोशिश किया थ्रू सरकार आपके द्वार। अभी ऑफिसर्स डीसी से लेके जितने भी जो ऑफिसर्स हैं सबको ये निर्देश दिया हुआ है कि आप लोग गाँव में जाके कैंप बिठाइए। उस कैंप के माध्यम से जो भी बेनिफिट केंद्र सरकार के योजना, राज्य सरकार के योजना, जो भी बेनिफिट है उस सरकार आपके द्वार कैंप से लोगों को दीजिए और लोगों को स्कीम्स और बेनिफिट के लिए आप लोगों को बताइए। तो ये कोशिश जो है नरेंद्र मोदी जी की सरकार और अपना राज्य सरकार की ओर से हम लोग ने शुरुआत किया है। अभी इसको और भी हम लोग थोड़ा मॉडिफाई करते हुए सरकार आपके द्वार को अभी हम लोग ने नया टैग दे दिया है, सेवा आपके द्वार, सेवा आपके द्वार। तो सेवा आपके द्वार में अभी ये हम लोग डाटा के साथ जाएंगे। अभी देखिए, अभी फॉर एग्जांपल यहाँ दरका में अभी सेवा आपके द्वार कैंप होना है। तो यहाँ दारक में सेवा आपके द्वार कैंप होना है। तो दारक के जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर है वो पहले से ही सर्वे कर लेगा कि फलाना गांव में किसका पास पानी का कनेक्शन नहीं पहुंचा, लाइट का प्रॉब्लम कहाँ पे है, इसके बाद राशन कार्ड कहाँ नहीं है, कौन सा स्कीम नहीं है, पूरा डाटा ड्रिवन के साथ में तब जाके डीसी और अपना जो कंसर्न एडीसी है वो लोग एचओडीज के साथ में यहाँ पे आके फटाफट उन लोगों को कागज के साथ में पूरा फैसिलिटी ये दिया जाएगा। तो पूरा रिसर्च ओरिएंटेड के साथ में ये सेवा आपके द्वार अभी अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सरकार पूरा कोशिश कर रहा है अपना लोगों के साथ में जुड़ने के लिए, अपना लोगों का जो भी जो मुश्किल जो फेस कर रहा है उसको हम लोग सोल्व करने के लिए। अभी आज हमारे बीच यहाँ पे इस कॉन्स्टिट्यूंसी के फॉर्मर एमएलए और फॉर्मर मिनिस्टर
हमारा लिजुम रोनिया साहब भी यहाँ उपस्थित है और उन्होंने यहाँ पे कनेक्टिविटी का बारे में बताया कि इसी रोड पे कुछ ब्रिजेस का ज़रूरी है। तो मैंने ऑलरेडी जो जहाँ पे हम लोगों का ब्रेकफास्ट में जो गांव में मैंने वहाँ के जनता को भी कहा कि इस रोड का हम इसको अपलिफ्टमेंट हम ज़रूर करेंगे। आते वक्त ब्रिज भी मैंने देखा था, तो मैं डिपार्टमेंट को बात करके इस ब्रिज को कौन सा टेक्नोलॉजी का माध्यम से स्ट्रेंथनिंग करना है उसको हम ज़रूर करेंगे। न्यामर जी ने कहा है कि इस रोड के अंतर्गत में करीबन 16 या 17 गाँव इस रोड का बेनिफिशियरी होता है, तो इस रोड को स्ट्रेंथनिंग हम ज़रूर करेंगे आने वाला दिनों में। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ न्यामर जी ने यहाँ पे बताया कि जो 2 सर्कल शायद योमचा और लिरुमोबा में रोड कनेक्टिविटी का वहाँ पे बहुत ही पुराना डिमांड है। लोग चाहते हैं कि वहाँ पे रोड बन जाए, करीबन 35 to 40 किलोमीटर्स का शायद ये रोड लेंथ होगा। तो मैं ज़रूर आप लोगों को इस रोड का भी मैं कुछ ना कुछ करके काम शुरुआत करने के लिए मैं ज़रूर सैंक्शन कर दूंगा। आने वाला दिनों में योमचा और लिरुमोबा भी रोड ज़रूर बन जाएगा। देखिए, लीडरशिप जो होता है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अभी टाइम का मुताबिक न्यामर जिस पोजीशन में है, आप लोगों का आशीर्वाद से, लिजुम रोनिया साहब जैसे सीनियर लीडर्स लोगों का आशीर्वाद से जो अभी न्यामर अभी इस पद पे जो है, तो ये आदमी भी बहुत अच्छा है, नया टेक्नोलॉजी को भी समझ लेता है और युवा है, जवान लोगों का साथ भी फटाफट घुल मिल जाता है और सीनियर लोगों का साथ भी घुल मिल जाता है। तो लीडरशिप कंटिन्यूएशन होना बहुत ज़रूरी होता है कॉन्स्टिट्यूंसी का प्रोग्रेस के लिए। तो आज यहाँ पे जितने भी जो हमारे गाँव बुरा लोग हैं, हमारे चारों सर्कल से जितने भी जो लीडर आए हैं, आप सभी को मेरा ये निवेदन होगा, आप लोग न्यामर करबक जी का साथ में हमेशा, उनका पॉलिसीज के साथ में हमेशा साथ दीजिएगा। न्यामर को साथ दिया मतलब आप लोगों का आशीर्वाद हमें भी छाया हुआ है, इसी प्रकार से आप लोग सोच लेना है। न्यामर को आशीर्वाद दीजिए और वही आशीर्वाद जो है आप लोग हमारा ऊपर में दिया जैसे ही हो जाएगा। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ में मैं आज यहाँ पे जो 31 ग्राम पंचायत के लोग जो यहाँ पे आए हैं खेल में, वेरियस गेम्स में जो पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं, उन सभी को मैं बेस्ट विशेस देना चाहता हूँ। और ये जो सामने में लेफ्ट साइड में जो ट्रॉफी रखा हुआ है, इतना बड़ा ट्रॉफी मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा और वहाँ पे मैं पढ़ा तो देखा है, ये बड़ा जो ट्रॉफी जो है ये फुटबॉल विनर के लिए है और सेकंड वाला जो शायद वो रनर्स अप का ये फुटबॉल का ट्रॉफी है। तो ये ट्रॉफी देख के बहुत अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये फुटबॉल का है और अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट मैं खुद ही हूँ। और बाकी जो ट्रॉफी है वो छोटा है बोल के वो नहीं समझना है, मगर ये सब में अपना अपना एक वैल्यू होता है। तो बेस्ट विशेष सभी को, और जो यहाँ के ऑर्गेनाइजिंग जो मेन जो एसोसिएशन है लोडू बंगो स्पोर्ट्स एसोसिएशन, आप सभी को भी बेस्ट विशेष। और इस स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी हम भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे, बाद में हम एसोसिएशन का माध्यम से आप लोगों को कम्युनिकेट कर देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं दोबारा आऊँगा, दोबारा मिलेंगे आप सभी से। तो आप सभी को मैं ये भगवान दोनी पोलो से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का सेहत बहुत अच्छा हेल्थ आप लोगों का मेंटेन हो। और आप सभी को जैसे मैंने पहले रिक्वेस्ट किया, सुबह शाम जब भी होता है टाइम मिलता है एक्सरसाइज कीजिए, वॉकिंग कीजिए, बैडमिंटन खेलिए, स्पोर्ट्स कुछ खेलिए, अपना हेल्थ अच्छे से मेंटेन रखिए। और दोनी पोलो को मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके पूरा परिवार में पूरा खुशी से एकदम पूरा ब्लेस करे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। आइए इस बात के प्रतिज्ञाबद्ध रहें और हम प्रत्येक खिलाड़ी को प्रतिज्ञा दिलाने के लिए मैं आज के हमारे माननीय सम्मानित अतिथि माननीय विधायक असी कारदौर निग्यर जी से अनुरोध करता हूं कि वे आगे आकर हमारे खिलाड़ियों को प्रतिज्ञा दिलाएं और उनसे हिदायत के 2 अल्फाज बांटें। असी कारदौर निग्यर जी। We, the team members of Gram Panchayat segment of Circle, pledge and affirm to take part in the 5th edition of Carnival 22 of 27 Lirumoba Assembly Constituency at Dara, respecting
and abiding by the rules and regulations framed by the Lodo Bango Sports Association. In the spirit of fair play, we all commit ourselves to take part in the games in the true sportsman spirit, brotherhood, unity, and integrity among ourselves. Further, will not do any such an act that may bring bad reputation to the tradition and the spirit of the sports, and also to our Gram Panchayat segment, as well as to our constituency, state and the nation. Sir Pema Khandu ji, Honorable MLA Lirumova Sri Karbak Sir ji, Honorable MLA Alo East Sir Kento ji ne, Honorable MLA 29 Bashar Assembly Constituency Sri Gokar Basar ji, Madam Gojung Karlo ji, DC SP Westsiang, ZPC Westsiang and Leparada, former Minister Ronya sir, Joint Secretary to the Government of Arunachal Pradesh, Sri Sode Potomji, ADC Kamba, ADC Yomcha, Sir Kirki Oriji, Chief Engineer Police Housing, ZPM Darak, all the HODs of Westsiang district, as well as the officer and officer of the Darak and Kamba Circle, senior citizen, members of organizing committee, PRI members, Gam Gade, Pono Party, Naru participant okay Siloga Akum na Nigeria Megade. Silo Nunuk 5th Carnival Sports Meet Hoka Guest of Honor Varila Ngo Majaba Mujihidu Honorable CN Sarga Satlo Big Chief Guest Rikulo Guest of Honor Nunu Ngo Mepa Hila Monamam Ngo Majaba Ajiba Meduna Sports Ngono Yolega Varipalagido de Ngonuka former Minister Ronya sir Nunam Aliba Brief Minjigeba Sports Rikoka, Games and Sports Rikoka Ngono Prize Panamam Chin Mapalage Regrela Mene Ngono Aiga Aken Sportsman Spritum Katomla Okay Aiga team ke discipline Katomla is a most interestingly Nono Aiga Gram Panchayatam represent do Aiga Gram Panchayat ge Aminam Bodnam Mopalagima Aiga sportsman spiritum sin maintain la palage Aken ge performance and Katomla Ija Munuk Westsiang Boke Narut Obserga the Chadu Nunuk Aken ge individual performance and Kare Mena Gome Nunu discipline Kapalagi Okay Munuk Maga Hinam Karbak Sarchin Mengeba Hoke main motto Lirumova constituency ge all circle ge niya akumla Aken Kachen Hila
long lo ke go rebam la interaction rila hok purpose lagabe ok nigad sportsam आगे बढ़ाइला आगे हेल्थ लगा बच्चे स्पोर्ट्स रे नाम है मजा बे दरकार दो नरु एमएलए ला ही कारबाग साहब नरु एमएलए के मैपेन गो आलने ओकेजन गो आलने प्लेटफॉर्म गो क्रिएट पा सिम नुनु दिनचिबे आबे तोका ओक भूमि रूमी नाम काटमा बे Gondogol ritmaba games and sports a live valedictory function lobe kakenbe aken bujung gabba ila impeni yen hidukuba atmosphere maintain lat kamla ngochin nonu guest of honor isabbe narwem request duna ok ho chapare nundam agom gomjigo ngok side lokchin ngo jabji nama maji balap madu ngo kenlochin kamba bolo kanke doni polo college week lo guest of honor be speaker के साथ लो आतबा ok kamba area sports association के veteran football tournament golo chief guest beritba em ijja के government ही Karbak Sarachin Mengeba under the leadership of Pema Khandu sir state Majjave Alebe Age Baridu Naru sector law, Naru front law development ridu sim spirit maintain lanam legabe Gunu alne leader loke nempelag Chief Minister Akene Rilamare Buem support den loke alne MLA loke perform ne MLA loke discipline den loke work quality maintain den loke Arunachal regoam dinchibe gajin den loke big supporter MLA loke nempela hok side loke ngunuke Karbak sar ngunu galo MLA gadige Thoughts we are arbored. Munugichin ekta mega gobretu. We honorable CM ga साथ लो. Alive tal midla. Redu ok ngunuk chief minister chin nunuk MLM ne majjabe confident go katu. Awang tol chin we gacek nyedak lo ngun rebamla. Nunuk MLA Karbak sar ne majabe dinchibe mendeke jambe tase sar rekumala chin Karbak sab garu ne rerorem ngok mega dudo emla jabdeke Arunachal hoke chief minister naruga mega name stable government solaine Hembe confident go nuluk MLM karore ngo lujum ronya sarga menkolok mentem dune ano posben nonu molen toka ngono galo gadige contest ko jegalo buem ne ngono hire la star campaigner ba ladu ba nok lir moba ngunam MLA go contribute toka yo digdari kamadu ba ok ngunu ke ijaga galo MLA renega di kuda ngunu garalo contradiction kama ngunu minister lega bechin mentorin kama emre na majjavere kendo naru asinapu gami hidu dutulango kalachi jimi hidu naju namlo agwatem go occasion go kalachin ngono ina inkur hedu assembly bol dola chin gokko mele saate bamdu ijage 7 legislative assembly hoke yadi go ngono galo legislative assembly bol member kadu de ngono garalo unity cooperation kadu sim spirit ngo maintain la bolo
Ade na alo ay lochin galo ngunuk rego du go alrepa ngo mele ndu nak ngo nunuk galo welfare society ge chin chief patron ok chief patron mala chin ngge rego du go aburao ngge galo ge rego du go lega Arunachal ge rego lega ba ok India jabare kumchin ekta ngoklo strong ba nationalist feeling o kadune Emre nama dolo gade ngono state alal ne काम लोग रिलेन लब बदुने innovative काम इजा काम में नोनो के he kambai chin badminton court ku auditorium ku dere ku oke he field kaken jab sajaila dar kam ngono am jabe rilba mo dulu ber duna nam ban me chalen la ka ku nam hok rego du go adek du mo ko chi lau pa ba du hok ni ga de chin amrela ni gom ni te rilen don ni puri potam chendu na ni em la ka de ber du ke hok rimo loke ngono asina pukachin pole dam pola juga karbak sari jam menge ba election ko ke 4000 ni go BJP lo join kam du oka aru join den ne ka du ka akena ni go chin nono tolok bolok mela dun go ka du bolo chin join to ka alne leader go ke ardne leader go ke Nigom nyite rego du go malep chenne go ke ngo buam Assam bolchin imbam la Assam chief minister bol muni imbila lika bali bok issue ke mego kala hem gade discuss namme Assam CM chin nyamar mellak mabe naimar karba kamla naimar musirum ngok birthday nono birthday hochin attend toka ok nonugam allona arom next discussion riduba emla Assam siang bolchin ngono tini gonta go nguni du bil achin dogala lika bali bok tinta agenda go na ngunuk inbe naruam settlika Assam chin chendu all India chin chendu Arunachal chin chendu ok CM ga ekta karibi MLA bug achabur garin MLA Hege go nuno leader go pan me nunam doni pol ga yinda me isor ga yinda me hege ne leader go duro orem nuno akena ni go chin muchi man kat bolo narua join la ngo koju mentaba bug rego do gom kaj toka buam chin 100% nuno lirmova constituency ngok nie ku emla buchin ekta morally boast tagebe nunna ngo ritukam la ngo chamem lama silongo him nunnam jabdu ne ok tayo lo ngologono chin mentaba ngunuge Delhi be Arunachal against corruption emla party go indu ngunuk ni gadde kanme especially Weshyang ok ni gadde boke Delhi boke abad tebi loke reporter go chala ngonu ke povin padu be complain la buam hoke SP somon la chama daro majja bosto home minister union home minister ne chi letter hella ngok security jip lage so chalen kunu me ngunuk ni ga deku pol tulik laku kairi jabrila ko Arunachal against corruption हमनम team ही स्टेट लेगा काम रिदो बोलो मुनिसि सपोर्ट पे लगे स्टेट के इंटरेस्ट लो रिदो बोलो मुनिसि सपोर्ट पे लगे बोलो क्रिनाम बाई स्टेट के इंटरेस्ट का गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज पे लगे गवर्नमेंट गिराई पे लगे पेमा कंदो सीएम अगर बना रहेगा 2024 तक
हमारा सर्वाइबिलिटी कहीं का नहीं है। ऐसा सोचने वाला लोग वहां एसीसी में है, एएसी में है। तो इनका तो प्योरली पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इनका अपना सर्वाइबिलिटी के लिए ढूंढ रहा है। तो ऐसा टीम को हम लोग क्यों सपोर्ट करेगा? मैं आप लोगों को ये विनम्र विनती करता हूं कि आप लोग वेस्ट सियांग का लोग भी आगे आइए। हमारा अरुणाचल में ऐसा एक गवर्नमेंट स्थापित किया है कि जिसको हम भरोसा कर सकते हैं, जिसका नेतृत्व को हम भरोसा कर सकता है कि हमारा स्टेट को अगुवाई करेगा और हमारा स्टेट को ऐसा दिशा दिखाएगा कि हम भी बाकी स्टेट से कमी नहीं। ऐसा एक नेतृत्व है कि हमारा पेमा खांडू जी का एक अपना एक तजुर्बा है, ऐसा एक युवा शक्ति है इनका अंदर में, एक डायनेमिज्म है। उस चीज को आप लोग को बताने से भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा मतलब एक बोल्ड स्टेप लेता है कि जैसे एसएसबी जैसा कॉन्स्टिट्यूट किया, जहां में हमारा मंत्री लोगों का कमाई खत्म कर दिया, जहां में आपका डायरेक्टर लेवल में रिक्रूटमेंट एग्जाम करके वहाँ पैसा ही बोलता था, ऐसा ये तो एक ओपन सीक्रेट है। लेकिन ये सब को एक साथ खत्म करके हमारा जो हमारा पढ़ा लिखा जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है, कैंडिडेट है, इनको सम्मान किया। ये तो एक सराहना वाला चीज है और उस चीज को आप लोग को समझ में आना चाहिए कि ये एक गवर्नमेंट है जिसको हम भरोसा कर सकते हैं। अभी देखिए एपीपीएससी में भी एक फैज को जो अभी सारा लोगों को अरेस्ट कर रहा है, तो ये एपीपी अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। तो इनका ड्यूटी है कि एग्जाम कंडक्ट करके, रिक्रूटमेंट एग्जाम कंडक्ट करके जो डिपार्टमेंट इसको रिक्वेजिशन दिया उसको रिकमेंड करना है गवर्नमेंट को, ये आदमी क्वालिफाई किया, उसको अपॉइंटमेंट करना है। तो एक ऑटोनोमस बॉडी है। इनका अंदर में जो गलतियां जो चल रहा था, तो उसको गवर्नमेंट को क्या पता? जब गवर्नमेंट का संज्ञान में आया, तुरंत हमारा सीएम साहब कैबिनेट बुलाया और सीधा सीबीआई को रिकमेंड किया। अभी सीबीआई जो है किसी का अंदर में नहीं है, वो भी एक इंडिपेंडेंट एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। तो अभी सीबीआई का राडार में सब कुछ आ चुका है, या अरेस्ट भी बहुत हुआ, लेकिन इसको भी अभी पॉलिटिसाइज करके बोलता है कि ये गवर्नमेंट ने कराया। अगर गवर्नमेंट कराया था तो क्यों सीबीआई को बुलाएगा? कोर्ट का पाव में तो कोई कुलारी तो मारेगा नहीं। तो इसको भी आप लोग को समझना चाहिए कि ये एक स्पष्ट एक सरकार है, एक मतलब जो निर्णय करता है वो पब्लिक का हित में करता है, और ये हमारा लोग भी इसको पूरा समर्थन देता है। हम तो खास करके जो हमारा ग्यामर तादांग बोल के जिसने इसको डिस्क्लोज किया, उस आदमी को हमें गोल्ड मेडल देना चाहिए। अभी इनका इलाज चल रहा है बेंगलोर में, तो इसका इलाज के लिए भी लोग आगे आकर के पैसा दे रहा है। मैं खुद भी 15,000 दिया हूं। तो हम लोग को ऐसा आदमी को सपोर्ट करके जो एपीपीएससी में जो धांधली था, जो पुल प्रूफ नहीं था, उसको पुल प्रूफ बना करके एक कॉन्फिडेंट बिल्ड करना है। उस दिशा में हमारा जो पेमा खांडू सर का सरकार काम कर रहा है। तो इतना काम करने वाला आदमी को आप लोग जो है सपोर्ट नहीं करेगा तो ये भी तो गलत होगा। हम सही को सही बोलना है और गलत को गलत बोलना है। अभी देखिए स्टेट में इतना डेवलपमेंट, हाल ही में हम लोग ये दोनी पोलो एयरपोर्ट को इनॉग्रेशन किया, वो तो बहुत एक बड़ा अचीवमेंट था। वो तो ऐसा मतलब नॉर्थ ईस्ट का एवरी स्टेट में एयरपोर्ट है, लेकिन हमारे स्टेट में नहीं था। हमारे स्टेट में नहीं होने की वजह से हम लोग को इतना तकलीफ होता था कि मेरा तो 5 बेटियां सब बाहर पड़ रहा है, इनको एयरपोर्ट में पहुंचाना है, फिर उसको पिकअप करना है। जब पिकअप करने जाता था तो दिल में गुस्सा आता था, हमारा पहले का जो सरकार चलाने वाला क्या काम कर रहा था, बाकी स्टेट में एयरपोर्ट है, हमारा पास नहीं है। उस चीज को सार का संज्ञान में आया, सार ने सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रेस किया और केंद्र में भी हमारा एक स्ट्रॉन्ग नेतृत्व है। तो 3 साल का भीतर हमें एयरपोर्ट बना कर दिया।
अभी देखिए फ्रंटियर हाईवे तवांग से लेकर के अंजोय तक ये एक बहुत बड़ा एक कठिन मतलब एक आपका ये एरिया है, लेकिन वहां भी अभी हाईवे बनेगा। उसके लिए 44,000 करोड़, हम लोग करोड़ को 10 करोड़ 20 करोड़ ऐसा सुनता था, लेकिन 1000 करोड़ को सुनाई नहीं देता था। ये भी 1000 2000 नहीं, 44,000 करोड़ का लागत से ये हाईवे बनेगा। अभी दापोरिजो से लेकर के आपका हमारा सिल्वर सर्कल होते हुए दिलुंगमुख निकलेगा, आनंदो बागान में आसाम को ज्वाइन करेगा। अभी दापोरिजो और आसाम का दूरी होगा आपका 110 किलोमीटर, वो भी सैंक्शन है अभी। और ईस्ट वेस्ट हाईवे हमारा पासीघाट तक ईस्टर्न साइड का पूरा बन चुका है। पासीघाट से लेकर के बैराकुंड ईटानगर होते हुए ये भी अभी एक्टिव कंसिडरेशन में है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये भी हाईवे बनेगा। तो इतना रास्ता बना रहा है जो छोटा मोटा एक बस्ती को जोड़ने वाला को प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत, और जो बड़ा बड़ा है वो मोड से, निश्चित से, एनएसी से, मतलब सारा पैसा को ऐसा यूटिलाइज कर रहा है कि अरुणाचल 5 साल का अंदर में कोई रास्ता बनाने जरूरी नहीं है। ये 3-4 साल का अंदर में हमारा रास्ता बन करके तैयार होगा। तो ऐसा सरकार को वहां कोई ब्लेम करता है तो सपोर्ट करना, प्रोटेक्ट करना हमारा फर्ज बनना चाहिए। मैं आप लोगों को यही बोलना चाहता हूं। और बोलने के लिए बहुत है, पर टाइम का भी पाबंदी है। हम लोग सीएम साहब से सुनते हैं। मेरा भाषण यही समाप्त करता हूं। सबको धन्यवाद।